Hi guys, so in this video we are going to talk about my hair fall journey and the mistakes I have been doing all along the way so that you guys can avoid it. Hi guys, so let me talk about my hair fall journey which I have never talked about before. So this was my hairs before when I was in my teenage years. I mean just look at this, literally बालों से ना सिल्क टपकता था. So I have got my genes from my mother और मेरे मम्मी के भी बहुत ज़्यादा सिल्की बाल है, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की थे, शाइनी थे, आप इस पिक्चर में देख सकते हो. Cut to now, by God's grace, I still have hair on my head. I have not gone completely bald, but now the silk is gone, the volume is going down. My hair, it's gone. मुझे ना आउटर अपीयरेंस से इतना फर्क नहीं पड़ता है कि बाल बहुत ज्यादा शाइनी है कि नहीं है, बट अगर मैं अपने बालों से ऐसे हाथ फेरता हूँ ना, आई कुड सी लिटरली स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन माई हैंड. My hair is starting to fall out. Especially for men, his hair is his makeup and the only accessory that he can wear with confidence. But जैसे जैसे ये बाल और hair fall से आपको झूलना पड़ता है ना, your confidence starts ripping off very easily and it's very painful to see that. So I decided to make a video and tell you guys about how my hair fall journey actually started, and at the same time there have been so many mistakes I have been committing since my teenage years. So let's get started. So talking about how it all started. I still remember when I was in my third year of engineering college और मैं fourth year में बस जाने ही वाला था ना, तो that period was very stressful for me. I remember I couldn't sleep for nights, just like 3 to 4 hours every single day, क्योंकि मुझे ना रोज college भी जाना पड़ता था. My college had a very strict attendance of 90%. But the real reason why I couldn't sleep at night was because of so much of anxiety, so much of stress and so much of fear. मुझे ना एक बहुत ही ज़्यादा डर लगता था कि क्या मेरा placement हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. Because when you take admission to a private engineering college, you guys know the fees is so high. My parents literally spend all their life savings to just support my tuition fees, my educational supplies, the transport and so many expenses which you need to pay while you are in a private engineering college. So I was in a constant fear, will I get a handsome package when I pass out or not? And honestly I was not jealous, but मेरे जितने भी friends थे ना, उनका placement होते जा रहा था and I was not getting a good placement and I was very worried. So मुझे आज भी याद है जब मैं 4th year में बस जाने ही वाला था, मैं रोज रात में लिटरली छत पे जाता था, रूफ में, लाइक इंडियन हाउस होल्ड के लिए तो रूफ और छत में जाना तो इट्स लाइक अ थेरेपी राइट गाइस. सो मैं छत में जाता था, यहाँ से वहां बस टहलता रहता था. आई वुड जस्ट लुक एट द मून थिंकिंग इट वुड काम मी डाउन. लिटरली मुझे अभी गूज़बम्स आ रहे हैं रिमेंबरिंग दोज स्ट्रेसफुल नाइट्स एंड दैट कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू माय हेयर फॉल जर्नी. आई रिमेंबर उस टाइम से ही मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ना स्टार्ट हो गए थे. सो आई हैव टू टेल यू गाइस दैट स्ट्रेस इज द बिगेस्ट रीजन जो आपके हेयर फॉल को कंट्रीब्यूट करता है. दिस वाज माय number one biggest mistake, to take so much of stress, so much of pressure on myself that my hair fall journey just got triggered. My mistake number 2, और इस mistake ने ना मेरे literally it destroyed the crown of my head. Your hair are the crown of your head which you are wearing all the time. हमारी सोसाइटी में एक ना ये स्टैंडर्ड चला है कि if you are a man, आपके बाल हमेशा छोटे होते हैं तो आप रोज नहा सकते हो, राइट? रोज अपने बाल आप अपने धो सकते हो. and that was the worst mistake of my life कि मैं literally मेरे लाइफ में एक पीरियड था जब मैं रोज नहाते वक्त रोज अपने सर से पानी डालता था. and I would wash my hairs every single day. चलो इतना तो फिर भी ठीक है कि तुमने सर में पानी डाल दिया, but the worst part was combing and brushing my hairs harshly on wet hairs. If you know anything, literally anything about hair care, you know it is a sin to comb and harshly brush your hairs when they are wet. Guys, जब आपके बाल गीले होते हैं, they are very much prone to breakage, they are very vulnerable, so please don't do that. और एक बात और, जब मुझे कॉलेज या स्कूल जाना था, जल्दी में मैं टाल से अपने बाल बहुत ज़्यादा हार्शली रब करता था so that जल्दी से वो सूख जाए मेरी बस आने के पहले. but at the same time your hairs are very soft, they are not meant to wrestle every single day. so mistake number 3, guys, आप इस mistake के लिए मुझे ना comment section में भर कर गालियाँ दो, literally want to kick my ass so bad. and that mistake is using cheap hair products like hair gel and hair wax. Literally my entire first year of college में रोज कॉलेज जाने के पहले cheap hair gel लगाता था, hair product लगाता था. गाइस आपको पता है ना इस सोसाइटी में क्या है, बॉयज की एक ही हेयर स्टाइल होती है, आपको स्पाइक्स बनाने होते हैं. तो मुझे तो जब मैं बहुत छोटा था मुझे तो यही लगता था ना कि यार स्पाइक्स बना लूंगा, कूल लगूंगा, कॉलेज में मेरा रोला होगा. एंड ऑफ कोर्स यार इट इज वेरी टफ व्हेन यू ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, यू वांट टू लुक योर बेस्ट. तो मैंने ना अपने पूरे फर्स्ट ईयर में रोज कॉलेज जाने के पहले हेयर जेल लगाता था, स्पाइक
बना के जाता था एंड ओ माई गॉड दैट वॉज द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। स्पेशली गाइज अगर आप यंग बॉयज हो मुझे देख रहे हो तो प्लीज अगर आप अवॉइड कर सकते हो चीप हेयर जेल और हेयर प्रोडक्ट लगाना हर रोज तो प्लीज अवॉइड करो, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेयर। तो गाइज मिस्टेक नंबर 4 ना, मुझे लगता है ये मिस्टेक हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। मुझे याद है स्कूल के बाद ना मुझे कोचिंग जानी होती थी, आई वुड हैव टू गो टू ट्यूशन, सो आई वुड गो ऑन अ बाइक। तो बाइक के लिए ऑफ कोर्स बात है आपको हेलमेट लगाना होता है। तो आपको पता है कि इंडियन फैमिलीज में क्या होता है, हर चीजें रिसाइकिल होती है। तो स्पेशली जब मेरी स्कूटी आई थी, मेरी स्कूटी नहीं थी, मेरी सिस्टर की स्कूटी थी एल्डर, जब उन्होंने यूज कर लिया तो उनकी स्कूटी मुझे मिल गई। तो उसके साथ साथ एक चीज मैंने और इनहेरिट करी थी, हेलमेट, उनका हेलमेट विच वॉज कंप्लीटली इल फिटिंग, मेरे हेड से वो छोटा था। प्लस मुझे आज भी है ना, मैं कोचिंग जाने के पहले इतनी तेजी से उस हेलमेट को पहनता था, इट वुड रब अगेंस्ट माय हेयर एंड हेड सो बैड, इट वुड क्रिएट सो मच ऑफ फ्रिक्शन कि मुझे याद है कि जब मैं हेलमेट उतारता था ना कोचिंग जाते समय, आई कुड सी स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर इन द हेलमेट। मैं इतना बेवकूफ लड़का था ना। तो गाइस अगर आपको हेलमेट लगाना है, सबसे पहले आपका हेलमेट वेल फिटेड होना चाहिए। प्लीज अपने बालों के साथ मत खेलो, वेल फिटेड हेलमेट लो। उसके बाद अपने सर में टाई अ हैंकरचीफ इफ यू हैव, अगर हैंकरचीफ नहीं यू कैन टाई ऑल्सो अ बैंडना लाइक आई एम डूइंग। सो गाइस अभी ना मेरे पास बाइक और स्कूटी है नहीं, बट एवरी टाइम आई हैव टू टेक एन उबर और ओला की बाइक टैक्सी, आई ऑलवेज प्रेफर वियरिंग अ बैंडना हेलमेट के नीचे, बिकॉज वो फ्रिक्शन क्रिएट होने से बचाता है, आपको बालों को रब होने से बचाता है, जिससे आपका हेयर फॉल कम हो सकता है। मिस्टेक नंबर 5 जो लिटरली मैंने ना बहुत ही रिसेंट टाइम तक करता आ रहा हूं एंड that was literally the worst decision of my life, that is applying shampoo direct on your scalp. Guys, these modern day shampoos, their advertisements are so misleading. No matter उसमें जो hair model है वो अपने directly scalp में massage करे, whatever, you have to dilute your shampoo before using it on your hair. So whenever I am shampooing my hairs, I use a spare container like a mug and उसमें मैं अपना shampoo pour करता हूँ and I just dilute it with little bit of water, and after diluting it then only I am applying it on my scalp or on my hair. At the same time you can pour the shampoo on your hand, just rub it well so that emulsification happens. और एक पागलपन मैं और करता था ना, मुझे ना नई चीजें ट्राई करने में इतना अच्छा लगता था, तो मैं क्या करता था ना, अगर मैं एक हफ्ते में 3 बार शैम्पू कर रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग 3 बार शैम्पू कर रहा हूँ ना, तो तीनों बार मैं अलग अलग शैम्पू से शैम्पू करूंगा। लिटरली एक दिन सनसिल्क, एक दिन पैंटीन, एक दिन क्लिनिक प्लस। मतलब कोई सेंस है इस बात का कि आप 3 दिन शैम्पू कर रहे हो, तीनों दिन अलग अलग शैम्पू कर रहे हो। ऑफ कोर्स हेयर फॉल नहीं होगा, हेयर डैमेज नहीं होगा, तो क्या होगा भाई साहब। सो मिस्टेक नंबर 6, नॉट ऑयलिंग माई हेयर्स। गाइस मैंने ना अपने बालों को ऑयलिंग करना छोड़ दिया था, लिटरली 2-3 महीने तक मैंने बिल्कुल तेल नहीं लगाया। एंड द रीजन है जो मॉडर्न डे डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो स्किन डॉक्टर है, जो हेयर डॉक्टर है, वो बहुत कहते हैं ना, बहुत सारे ओपिनियंस आ गए बेसिकली मार्केट में कि हेयर ऑयलिंग इज नॉट गुड, आप लिटरली डर्ट को पुश कर रहे हो अलॉन्ग विद हेयर, योर स्कैल्प इज ऑलरेडी ऑयली, यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ ऑयल अगेन, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेयर्स। गाइस मुझे ऐसा लगता है ना, देखो सबसे पहली बात है कि मैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है हेयर या स्किन की, सो आई कैन नॉट वाउच और I cannot challenge the opinions of other doctors, but at the same time I just personally feel like I think just like skin care, hair care में भी ना you should adopt what is best for you, जो आपके बालों को सबसे ज्यादा सूट कर रहा है, आपके पर्सनल सिचुएशन को सूट कर रहा है, आपको वही स्ट्रैटेजी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। तो यार मुझे याद है जब मैं अपने बालों को रेगुलरली ऑयल करता था ना, आई हैड वॉल्यूमिनस हेयर, मेरे बालों में सिल्क था, आई हैड सुपर सिल्की हेयर्स, और जो एक शाइन होता है ना वो हमेशा था। पर 2-3 महीने जब मैंने अपने बालों को ऑयल नहीं किया ना, आई कुड सी द चेंजेस। So currently I have just gone back to my Indian roots. I apply oil on my hairs at least twice a week. So I am just trying to do what is working best for my hair situation. And you should do the same. And guys, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, I think इस बात से ना आप भी एग्री करोगे कि यार देखो, अब मुझे नहीं मालूम कि जो हेयर ऑयल है वो आपकी स्कैल्प को नरिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट यू कैन अग्री राइट, जब आप बालों में तेल लगाते हो, जब आप मसाज करते हो, तो स्ट्रेस को कम करते हैं, एक रिलैक्सेशन फील कराता है राइट। हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रेसफुल बबल में रहते हैं आजकल, काम का प्रेशर, घर का प्रेशर, इतना ज्यादा प्रेशर है ना कि हम लोग भूल जाते हैं कहीं ना कहीं रिलैक्स करना। और आपको पता है स्ट्रेस इज सो डायरेक्टली रिलेटेड टू हेयर फॉल, तो अगर ऑयलिंग करने से आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, आपकी लाइफ से स्ट्रेस दूर हो रहा है, इट मींस कि वो हेयर फॉल से लड़ेगा। कैन आई टेल यू माय मिस्टेक नंबर 7, यूजिंग दोस जिग जैग हेयर बैंड। गाइस मुझे याद है जब मैं टीनेज था ना, तो एक फैशन चला था लड़कों में कि बाल थोड़े से लंबे होने चाहिए यहाँ तक, और अपने बालों में आपको ये बैंड लगाना, तो बेसिकली ये एक फैशन सेंस था। तो फैशन सेंस आया तो
हम भी कूद गए इस पे, हमने भी अपने बाल लंबे किए और वो वाला बैंड लगाना शुरू कर दिया। आई हैव टू टेल यू, आई हैव सो मच ऑफ दिस फीलिंग इन माई हार्ट। माई गट टेल्स मी कि दैट बैंड हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू माई रिसीडिंग हेयर लाइन, क्योंकि वो ना मेरे बालों को इतना फोर्सफुली पुश करता था अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऊपर की साइड ऐसे पुश करता था, अपने नेचुरल डायरेक्शन के अगेंस्ट पुश करता था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे इस साइड थोड़े से बाल वाल आने कम हो गए। मुझे आज भी याद है जब भी वो मैं बैंड को उतारता था मुझे बैंड में अपने बाल दिखते ही दिखते थे। माई मिस्टेक नंबर 8, लिटरली मैं नंबर्स भूल गया हूँ, कितनी तो मिस्टेक कर दी जिंदगी में मैंने। I am a sinner. I am sorry, Lord. मेरे ना अभी कुछ टाइम से 1-2 महीने से मैं देख रहा हूँ कि मेरे बाल ब्लैक है नेचुरली, बट वो धीरे धीरे ब्राउन टर्न हो रहे। मैं तो पहले बड़ा खुश हो गया, मुझे ना कोई भी हेयर कलर नहीं करना पड़ रहा है, डाई नहीं करना पड़ रहा है, केमिकल नहीं लगाना पड़ रहा है, मेरे अपने आप बालों में हेयर कलर बदल जा रहा है, मुझे ब्राउन आ रहा है, कूल लग रहा है। बट एट द सेम टाइम जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला दिस इज नॉट अ वेरी हेल्दी साइन। सो गाइज इट्स एक्चुअली अ कंडीशन, जब आपके बालों में बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर बढ़ जाता है ना तो आपके बाल लिटरली डीकलराइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं। तो अब मैं जब भी बाहर जाता हूँ I make sure that I have a hat on or my cap on or I am wearing a bandana if it's sunny outside. So I just want to tell you guys that direct solar radiation is not good for your hair. So अगर आप बाहर जा रहे young boys, young girls, just try to cover your head. So guys, these were some of the mistakes which I had in my life, which I just wanted to share with you guys. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप इसे अपनी लाइफ में मत दोहराएं। मुझे ना एक अचानक से एक भूत सवार हो गया। I am on this mission to save my hair. I'm just praying to God कि God please hopefully in my 40s I don't turn bald. So to do that, just like my skincare, I have developed a hair care routine. So guys, if you are facing any adverse effect और आपके hair में कोई भी problem है, just try to visit a dermatologist. Dermatologist is basically a skin doctor and a hair doctor, so you can trust them. And I am going to share my hair care routine in my next video, because just like skincare, I have sort of developed a hair care routine also. So till then, stay tuned to my YouTube channel, which is Male Beauty, and at the same time, just answer this question before leaving right now. Will I see you later?